So, yes, hello children, how are you all? I hope you all are doing well. Alright, so in the last video, we had discussed about the difference between the microeconomics and the macroeconomics, and I hope I made myself very clear. So yes, in today's lecture, we're going to study about the different types of economies operated in the world, in rest of the world, and even in the country. Like suppose if I talk about our country, like in India, India has the concept of mixed economy, or you could say mixed economy operates in India. Like if I talk about UK, if I talk about USA, so the capitalistic economy, market economy flows there. If I talk about China, China has the pattern of socialistic economy. So yes, like in today's lecture, we're going to learn, we're going to discuss, I'll going to teach you the difference between the market economy, the socialistic economy, and the mixed economy. First of all, you should be aware of the alternative names of the market economy, socialistic economy, and the mixed economy. See, market economy is also known as the capitalistic economy, whereas socialistic economy is also known as the centrally planned economy, whereas the mixed economy is also known as the comprehensive economy. Now, like by one, we're going to learn the difference between these three. So first of all, we'll discuss about the market economy. So see, what is market economy, or you could say capitalistic economy? Market economy, capitalistic economy is the economy where all the economic decisions, focus karna, where all the economic decisions such as what to produce, how to produce, and for whom to produce are taken on the basis of market forces such as demand and supply. I'll repeat myself. Market economy is the economy where all the economic decisions such as what to produce, how to produce, and for whom to produce are taken on the basis of market forces, which is demand and supply. Now here comes like the question arises here, what is the economic decisions? So we'll discuss in brief. If I'll tell you the difference between what to produce, how to produce, and for whom to produce. See, what to produce, like consumer, like the producer has this, like per producer is in dilemma, like what kind of goods and services are should be produced by him, either capital goods or the consumer goods. If I say the problem of how to produce, then the problem arises here, like how the production should be done, whether should be used by the labor intensive or should be used machines, like labor should be employed more, or capital should be employed more by the producer. If I discuss the problem of for whom to produce, the problem arises here, like for which section of the society the goods and services has to be produced, either for the rich section of the society or for the poor sections of the society. Like if all such decisions, like what has to be produced, how it has to be produced, and for whom it has to be produced, if all such problems are solved, like by keeping the market forces in mind, such as demand and supply, such concept is known as market economy. For example, like suppose Mr. X है, Mr. X का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मिस्टर एक्स के पास में 10 लाख रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है. अब मिस्टर एक्स को देखना है कि मिस्टर एक्स को क्या प्रोड्यूस करना है, मिस्टर एक्स को कोई बिजनेस डालना है, मिस्टर एक्स को कोई काम करना है. मिस्टर एक्स क्या देखेगा? मिस्टर एक्स ये देखेगा कि उसको, मिस्टर एक्स क्या करेगा, ऐसे तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेगा ना. मिस्टर एक्स सबसे पहले क्या करेगा? मार्केट को एनालाइज करेगा, मार्केट का सर्वे करेगा. मिस्टर एक्स मार्केट का सर्वे करके ये देखेगा कि किन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट के अंदर डिमांड है, किन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट के अंदर सप्लाई. ये कौन देखेगा? ये मिस्टर एक्स देखेगा. ठीक है. अब किन गुड्स एंड सर्विसेज की मिस्टर एक्स ऑब्जर्व करने के बाद में जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट के अंदर डिमांड है, उनको मिस्टर एक्स क्या कर देगा? सप्लाई करेगा. ऐसा क्यों देखेगा? क्योंकि मिस्टर एक्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है. मिस्टर एक्स चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे. तो दूसरा फीचर क्या है इस इकोनॉमी का? दूसरा फीचर है इस इकोनॉमी का कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए इस इकोनॉमी के अंदर. सो दिस इज़ द सेकेंड फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी. दूसरा, मिस्टर एक्स देखेगा कि यार उसे कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. मान लो मिस्टर एक्स ने देखा, मिस्टर एक्स केम टू नो, लाइक बाय ऑब्जर्विंग द मार्केट, मिस्टर एक्स केम टू नो कि
सपोज कैफ़ेज़ आर इन डिमांड, तो मिस्टर एक्स ने देखा कि कैफ़े मैं खोल लेता हूँ, उसका इंटीरियर करा लूँगा। अब मिस्टर एक्स देखेगा कि किस चीज़ का काम है, मतलब कैफ़े में अगर मैं देखूँ तो मुझे मशीन ज़्यादा लगा के फ़ायदा मिल सकता है या लेबर लगा के मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो ये भी मिस्टर एक्स देखेगा। ये किसके बेसिस पे देखेगा, ये देखेगा कि अगर मैं लेबर लगाता हूँ, कैपिटल लगाता हूँ, तो कॉस्टिंग किससे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन एनालाइज़ करेगा, मिस्टर एक्स एनालाइज़ करेगा। उसके बाद में मिस्टर एक्स ने देखा उसको कैफ़े खोलना है, तो कैफ़े कैन बी ओपन फॉर रिच क्लास ऑफ रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पुअर कैन नॉट अफोर्ड इट बेसिकली। ठीक है, तो रिच सेक्शन के लिए अगर खोलेगा तो मोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल बी देयर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा मिस्टर एक्स, यही तो होगा और क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या किया, आपने ये सारी की सारी चीज़ें यानी मिस्टर एक्स ने क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस है ये किसके बेसिस पे लिए, ये मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे लिए, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में क्या चीज़ को सप्लाई काम किया जा सकता है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन द केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब क्या आता है, अब आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। व्हाट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी? सो वेयर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जब ये डिसीजंस कौन ले लेता है, जब ये डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है, व्हेन ऑल सच डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट with a motive to earn the with a motive to maximize the social welfare, तो ये क्या होती है हमारी, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। अब गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली डिसीजंस किसके लिए लेगी, गवर्नमेंट ऑब्वियसली डिसीजंस फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए लेगी। फिर अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द इकोनॉमी वेयर all the economic decisions such as what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by the government as well as by the market forces, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अगेन आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब जब हमारे पास में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके सल्यूशंस भी होंगे। सल्यूशंस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिए। ठीक है, सल्यूशंस मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, ये हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। जैसे मार्केट इकोनॉमी में आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे करोगे, किसके लिए करोगे, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया। अब सोशलिस्टिक पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या मोटिव होगा, गवर्नमेंट का वेलफेयर का मोटिव होगा। तो गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज़ विच इज़ बीइंग डिमांडेड बाय द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। How government will produce? Government will use the labor intensive technology. Why? Because the problem of unemployment will be solved in the economy. किसके लिए प्रोड्यूस करेगी, फॉर whom टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट विल गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर दी पुअर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, ये चीज़ होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें फॉर whom टू प्रोड्यूस, सो दिस आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करेगी, गवर्नमेंट भी काम करेगी, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी काम करेगी और कौन काम करेगा, और डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस भी प्रिवेल करेंगे। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो कैसे काम करेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो किसके लिए काम करेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो काम करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। जबकि गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी हमारे पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगी, एंड उसके बाद में लेबर इंटेंसिव के साथ में हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव को यूज़ करेंगे। फिर अगर हम लोग फॉर whom टू प्रोड्यूस की बात करें, देन फॉर whom टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉर whom टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, यानी गवर्नमेंट तो किसके लिए करेगी, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए करेगी, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स किसके लिए करेंगे, रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या किया, ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ पढ़ा,
और उनके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस पढ़े इन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़.